بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ آغاز میں آپ کو بتائیں وزیراعظم شہباز شریف نے ملک بھر میں ایگریکلچر اینڈ کلائمیٹ ایمرجنسی نافذ کر دی۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے وزیراعظم کا کہنا تھا کہ سیلاب نے پنجاب میں تباہی مچائی، اب سندھ میں داخل ہو رہا ہے۔ موسمیاتی تبدیلیوں سے پاکستان اکیلا نہیں نمٹ سکتا۔ پاک فوج کے دلیر افسر میجر عدنان اسلم نے خارج سے لڑتے ہوئے جان کا نذرانہ دیا۔ دہشت گردوں اور فتنہ پھیلانے والوں کی نشاندہی کر کے ان سے چھٹکارا حاصل کرنا ہوگا۔ آج لوگ سوشل میڈیا پر اداروں کی تصحیح کرتے ہیں۔ چین کا حالیہ دورہ کامیاب رہا۔ سی پیک فیز 2 کے خدوخال زراعت B2B انویسٹمنٹ کے کیش فائنانشل ماڈل کا اعلان کیا جائے گا۔ امریکہ سے تعلقات اور چین کے ساتھ تصویراتی شراکت داری کو مضبوط بنانا ہے۔ اور کراچی میں بارشوں سے اموات کی تعداد 6 ہو گئی۔ 2 دن کی بارش نے ملیر اور لیاری کی ندیاں دریاؤں میں بدل دی اور نشیبی علاقے ڈوب گئے۔ بارش کے باعث تمام سرکاری اور نجی تعلیمی ادارے بند رہے۔ گڈاپ ٹاؤن میں کونکری ندری سے 2 لاشیں ملی، جبکہ نارتھ ناظم آباد میں کرنٹ لگنے سے 18 سالہ احمد وقار جاں بحق ہو گئے ہیں۔ ٹھڈو ڈیم اوور فلو ہونے سے پانی سادی ٹاؤن، اسکیم 33 اور قریبی علاقوں میں بھی داخل ہو گیا اور M9 موٹر وے کئی گھنٹوں سے بند رہی۔ ہب ڈیم میں پانی کی سطح میں 2 فٹ اضافہ ہو گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے ٹھڈو ڈیم کے بہاؤ پر کڑی نظر رکھنے کی ہدایت دی۔ میئر کراچی نے کہا کہ لیاری ندی میں اتنا پانی پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا۔ پاک فوج، رینجرز اور ریسکیو 112 نے کارروائیاں کرتے ہوئے 200 سے زائد افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا۔ محکمہ موسمیات نے مزید بارش کی پیشگوئی کی ہے اور بتایا کہ سسٹم 11 ستمبر کو بلوچستان میں ختم ہوگا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی کے سرجانی ٹاؤن میں سب سے زیادہ 143 ملی میٹر بارش ہوئی۔ گلشن موار 109، گلشن حدید 92 ملی میٹر، نارتھ کراچی 81، DHA فیز 2 میں 74 ملی میٹر بارش ہوئی۔ شہر فیصل 64، کیماری میں 63 ملی میٹر بارش ریکارڈ۔ ناظم آباد اور سادی ٹاؤن میں 60 ملی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی۔ یونیورسٹی روڈ اور موسمیات کے اطراف میں 58 ملی میٹر بارش ہوئی۔ اورنگئی 47، ماڑی پور 45 ملی میٹر بارش ہوئی۔ جناح ٹرمینل کے اطراف میں 38 ملی میٹر بارش ہوئی ہے۔ کراچی ٹھڈو ڈیم میں اوور فلو کے باعث M9 موٹر وے پر پانی داخل ہو گیا، جو موٹر وے پولیس ساؤتھ زون کے زونل آفس اور ملکہ آبادی تک پہنچ گیا۔ زونل آفس نشیبی زمین پر واقع ہے، جس کی وجہ سے پانی کے خراش کا راستہ نہ رہا۔ موٹر وے پولیس کے افسران اور ملازمین ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار تھے۔ تمام آفیشیل گاڑیاں، آلات اور ریکارڈ محفوظ کر لیے گئے ہیں۔ واقعے میں کسی قسم کا جانی یا مالی نقصان نہیں ہوا۔ آفس میں بلوچستان سے لائی گئی ناقابل استعمال گاڑیاں کھڑی تھی، جن کا آکشن اسلام آباد میں کیا جائے گا۔ ناقابل استعمال گاڑیوں میں کوئی کارآمد آلات یا سپیڈ چیکنگ کیمرے نصب نہیں تھے۔ موٹر وے پولیس کی تمام آپریشنل اور پیٹرولنگ گاڑیاں معمول کے مطابق آن روڈ موجود ہیں۔ کراچی میں بارش کی تیاری کی ہوئی تھی۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی میڈیا سے گفتگو کہتے ہیں کہ اس وقت پورے سندھ میں بارشیں ہو رہی ہیں، پوری انتظامیہ فیلڈ میں موجود رہی۔ سیلاب کے حوالے سے ہماری تیاری مکمل ہے۔ امید ہے سیلابی پانی 6 لاکھ کیوسک سے زیادہ نہیں آئے گا۔ کراچی میں جو بارش ہوئی ہے اس کی تیاری کی ہوئی تھی۔ مراد علی شاہ کہتے ہیں پورے سندھ میں بارشیں ہو رہی ہیں اور ہماری تیاری پوری طرح جاری ہے اور سیلاب کے حوالے سے ہماری تیاری مکمل ہے۔ ABN نیوز کی خبر پر ایکشن۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے جلال پور پیروالا میں سیلاب متاثرہ علاقوں میں پرائیویٹ کشتیوں کے اضافی پیسے لینے کا نوٹس لیتے ہوئے مزید کشتیاں بھیجنے کا اعلان کر دیا۔ مریم نواز نے سیلاب متاثرین سے ملاقات کی اور ان کے مسائل دریافت کیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے دلاسا دیا اور سیلاب متاثرین میں چیک تقسیم کیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن پر بریفنگ بھی دی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا تھا کہ سیلاب متاثرین کی ہر ممکن مدد کی جا رہی ہے۔ سیلاب سے پنجاب میں بڑے پیمانے پر نقصان ہوا۔ سیلاب متاثرین کو تیار کھانا اور دیگر سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ گھروں اور مال مویشی کے نقصانات کا ازالہ کیا جائے گا۔ جلال پور پیروالا کا عارضی بند ٹوٹنے کے خوف سے شہریوں نے گھروں کے سامنے اپنی مددگار کے تحت کئی فٹ تک کاغذ اور مٹی کی حفاظتی دیواریں بنانا شروع کر دی ہیں۔ شہر میں خوف کی فضا ہے، شہر انتظامیہ سے نالاں ہیں۔ جلال پور پیروالا کا عارضی بند ٹوٹنے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ شہریوں نے گھروں کے سامنے کئی فٹ بلند حفاظتی دیواریں بنانا شروع کر دی ہیں۔ شہری انتظامیہ کی کارکردگی پر ناخوش مایوسی کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ جلال پور پیروالا سے آپ کو بتائیں لوگ اپنی حفاظت کے لیے خود اقدامات کر رہے ہیں۔ جلال پور پیروالا کا عارضی بند ٹوٹنے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی صوبائی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے ہیں۔ بیکاز یہ ہمارے ملک کی بدنامی کا مسئلہ ہے، کسی صورت ہم اجازت نہیں دیں گے کسی کو کہ یہ ال پریکٹس جو ہے وہ یہاں پر چلے۔ ہم پر اس آرٹیکل کے حوالے سے تو بہت ساری باتیں ہیں۔ ممکن ہے پاکستان کے خلاف جس منظم انداز میں whenever we took off, whenever we try to took off پاکستان کے خلاف کوئی نہ کوئی ایسا ماحول بنایا جاتا ہے جہاں فیٹف، جہاں پاپی فری،
ये सारी चीजें देखनी पड़ेंगी, लेकिन फिर भी हम इसको इस अंदाज में ले रहे हैं कि सच ले रहे हैं, ताकि हम सच लेके ही हम आगे बढ़ेंगे। मैं पूरे बलूचिस्तान के लोगों को बड़ा खुल के बता रहा हूं कि हम आपके पीछे आ रहे हैं। डोंट डू दिस, मत करें ये। पैसों के लालच में आके अपनी रियासत को कमजोर करने की कोशिश मत करें। हार्ड एंड स्टेट रियासत हार्ड होकर राह पर आएगी, आपका नुकसान होगा। हम सिर्फ ग्रोअर्स, फैसिलिटेटर्स, जमींदार का जो मालिक, जमीन का जो मालिक होगा वो उसकी जमीन कन्फिस्केट करेंगे और स्टेट के नाम पे उसको ट्रांसफर करेंगे। लिहाजा आप इस धंधे में बलूचिस्तान के लोगों को मैं कह रहा हूं मत पड़े। अगर पड़ेंगे दरिया चनाब में ऊंचे दर्जे के सैलाबी रैले की बेरहम मौजें लोगों के घरों में दाखिल। सैलाबी पानी से मुल्तान के 138 से जायद देहात ज़ेरियाब। पानी की सतह मजीद बुलंद हो रही है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा आसिफ चावन से। जी आसिफ, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त दरिया चनाब में मुल्तान के करीब सैलाबी सूरत हाल है। मैं आपको बताते चले कि 138 से ज़ायद मौजे जो हैं वो शदीद जो यहाँ पे पानी का सैलाबी रेला गुजर रहा है उसने अपनी लपेट में लिए हुए हैं। ज़िला इंतजामिया के मुताबिक मुल्तान में इस वक्त 450 से ज़ायद लोगों ने नकल मकानी करके महफूज मकामात पर मुंतकिल हो चुके हैं। हमारे साथ एक फैमिली मौजूद है जो इस वक्त भी अपने घर में बैठी हुई है और रेस्क्यू की टीमें यहाँ पे पहुंची हुई है, उनको रेस्क्यू किया जा रहा है। 50 साल उम्र में मैंने इस तरह का फ्लड नहीं देखा। ये जो पहला मैं देख रहा हूँ कि ये पहला सैलाब है जो हमारे अंदर थड़े के ऊपर चला गया और हमारे कमरों में गुजर गया और इसने हमें बहुत ज्यादा परेशान किया। और गवर्नमेंट ने तो हमें इस वक्त तक हमारे से पूछा भी नहीं है कि यार आप लोग किस तरह गुजर बसर हो रही है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, उनकी जानिब से बताया गया है कि उनकी तारीख में, जिंदगी में सबसे खतरनाक सैलाब जो है वो 2025 में आया है। पानी जो है उनके घरों में दाखिल हो चुका है और इंतजामिया से भी वो नाला नजर आ रहे हैं। इस वक्त रेस्क्यू की जो टीमें हैं उनको घरों से निकालकर महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रही हैं। शुजाबाद के मौसा सोमन में दरिया चनाब में इस वक्त ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार है, जिसके बायस सूरत हाल मजीद संगीन होती जा रही है। अब तक 27 मौसजात सैलाबी पानी की जद में आ चुके हैं, जबकि मजीद 6 लाख क्यूसेक पानी का रेला दरिया चनाब में दाखिल होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। इंतजामिया के तर्जुमान के मुताबिक मुमकिन रैले के पेश नज़र करीबी आबादियों को फौरी तौर पर खाली करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं ताकि इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके। रेस्क्यू 1122 ज़िला इंतजामिया, पुलिस और दीगर मुतलका इदारे मुताशर इलाकों में अलर्ट हैं और रिलीफ ऑपरेशन के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। कश्तियों, मोबाइल मेडिकल यूनिट्स और खुराक की फराहमी के लिए भी इक़दाम जारी हैं। कसूर दरिया सतलज में पानी की सतह में नुमाया कमी। गंडा सिंह के मुकाम पर पानी का अखराज 1,82,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। दूसरी जानिब महकमा आबी वसाइल की जानिब से एक बार फिर इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया गया। मजीद जानते अपने नुमाइंदे मियां काशिफ से। जी काशिफ, बताइएगा। बिल्कुल, दरिया सतलुज में सैलाबी सूरत हाल की बात की जाए तो गुज़िश्ता रोज़ से ही दरिया सतलुज में सैलाबी पानी में जो है वो कमी का रुझान जो है वो बरकरार है। लेकिन बात की जाए तो गुज़िश्ता 2 से 3 घंटों में पानी की सतह में जो है वो काफ़ी हद तक तेज़ी के साथ जो है वो कमी आई है और इस वक्त पानी जो है वो सड़कों से जो है वो उतर चुका है। मैं इस वक्त सहजरा रोड पर मौजूद हूँ। बात की जाए तो सहजरा रोड भी जो है वो ट्रैफिक के लिए जो है वो चल पड़ा है। एक दो जगह पर जो है वो सैलाबी पानी ने जो है वो सड़क को काफी हद तक जो है वो नुकसान पहुंचाया है। दूसरी जानब बात की जाए तो जो बिक्कीवेंट को मिलाने वाला मेन रोड है वो भी जो है वो बहाल हो चुका है और इसके साथ साथ जो लोगों की आमदोरफ्त का सिलसिला जो है वो अपने देहातों की जानब जो है वो भी शुरू हो चुका है। अभी तक भी जो है वो कई जो देहात हैं वो पानी में जो है वो डूबे हुए हैं, जिसमें बात की जाए नगर एमनपुरा, छांट और मस्ते की और गट्टी कलंजर के जो देहात हैं वो इस वक्त भी जो है वो सैलाबी पानी के घेरे में है। और अगर भारत की जानब से मजीद अब पानी छोड़ा जाता है तो पहले ही जो है वो किसानों के, लोगों के बहुत ज्यादा जो है वो नुकसानात हो चुके हैं। अगर फिर पानी आता है, फिर सैलाबी सूरत हाल बनती है तो फिर जो है वो लोगों के जो है वो मजीद जो है वो नुकसानात होंगे। जी, हेड पंजनत बिराज से गुजरने वाला सैलाबी रैला अलीपुर में तबाही मचा गया। कई एकड़ पर खड़ी फसलें बर्बाद हो गई और मुतअद्दिद बस्तियों में पानी दाखिल हो गया। दूसरी जानिब सूरत हाल का जायजा लेने और मुतासरीन को खाना तकसीम करने के लिए सूबाई वजीर सरदार आमिर तलाल और सरदार जुगनू खान फ्लड बंद का दौरा कर रहे हैं। कानपुर में दरिया सिंध चाचड़ा के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा 6,43,422 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। 17 बस्तियां सैलाबी पानी से मुतासिर हुई हैं। बस्ती पीरशाह के रिहायशी भी सैलाबी पानी में मुश्किलात का शिकार हैं। मजीद जानते हैं नुमाइंदा ABN न्यूज़ रब नवाज से। जी रब नवाज, मजीद कहिएगा।
सिंध के मकाम पर मौजूद हूँ। अगर बात की जाए सैलाब की तो दरिया सिंध में तालाबी रेला जो गुजरा है, जिससे जो है 17 मोहताजात है वो पानी की जद में आ चुके हैं। इलाका मकीन जो है शदीद परेशानी में मुब्तला है। अब मेरे साथ इस वक्त बस्ती पीर शाह के इलाका मकीन मौजूद हैं, जो कि आने जाने में इनको शदीद दुश्वारी का सामना है। बच्चे भी बड़े भी सब पानी से ऐसे घिर के आते हैं, बाहर निकलते हैं, वो कोई भी नहीं दे रहे, हमें किश्ती वगैरह कुछ भी नहीं दे रहे। गवर्नमेंट की जानिब से यहाँ कैंप रिलीफ तो लगाए गए हैं, मगर हमें इसकी कोई सहूलत मुयसर नहीं है। तो उन्होंने हुकूमत से ये मुतालबा किया है कि उन्हें जो रिलीफ दिया जाए ताकि उन्हें जो दुश्वारी है उसको दूर हो सके। अहम खबर आपको दें, जलालपुर पीरवाला में कश्ती माफिया की लूटमार, वज़ीर आला मरियम नवाज का फौरी नोटिस। जलालपुर पीरवाला में सैलाब मुतासरीन प्राइवेट कश्ती मालिकान के इस्तेहसाल का शिकार हो रहे थे। ABN न्यूज़ की रिपोर्ट पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने फौरी एक्शन लेते हुए मुतासरा इलाकों का दौरा किया और प्राइवेट कश्तियों के इजाफी किरायों पर सख्त नोटिस लिया। वज़ीर आला ने हिदायत की कि तमाम प्राइवेट कश्तियों को हुकूमत अदायगी करेगी और ये कश्तियाँ ज़िला इंतजामिया की निगरानी में चलाई जाएंगी। कश्ती मालिकान की जानिब से मुतासरीन को लूटने वालों के खिलाफ कार्रवाई का भी हुक्म दे दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, सैलाब की आड़ में आवाम का इस्तेसाल किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और उनकी जानिब से मजीद भी कहा गया है कि कश्तियाँ अब ज़िला इंतजामिया की निगरानी में चलेंगी। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि कश्ती मालिकान की लूट मार पर कार्रवाई का हुक्म दिया गया है। मजीद तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ लाहौर उमर दराज गोंदल से। उमर, कहिएगा, वज़ीर आला पंजाब ने इस मामले का नोटिस ले लिया? सूरत हाल ये है, एक तो रेस्क्यू 1112 की कश्तियां चल रही हैं, उसके अलावा फलाही तंजीमें हैं, अल खिदमत, खिदमत खल्क और दीगर इदारे। तीसरे नंबर के ऊपर प्राइवेट माफिया जिसको कहना चाहिए। हमने आज लोगों से बात की और हमें लोगों ने बताया कि 2 से 2.5 लाख रुपया उनसे लिया गया है। फिर एक वाकया हमने रिपोर्ट किया जिसमें 50,000 रुपए लेके एक बंदे को बाकायदा उतार दिया गया। उससे कमिटमेंट हुई थी, शायद उसका कहना था कि मेरे से ज्यादा किसी ने पैसे दिए तो मेरे से पैसे भी ले लिए गए और मेरे बच्चों को भी रेस्क्यू नहीं किया गया। इस मामले को हमने आज हाईलाइट किया तो मरियम नवाज शरीफ साहब चूंकि आज जलालपुर पीरवाला में ही थी और उन्होंने इस मामले का नोटिस ABN न्यूज की खबर का लिया है और उन्होंने ये हिदायत की है कि जो प्राइवेट कश्तियों की अदायगी है अब वो सैलाब मुतासरीन नहीं करेंगे, वो हुकूमत करेगी। यानी उन जो प्राइवेट कश्तियां हैं उनको भी अब बाकायदा हायर एक तरह से कर लिया गया है और इस हवाले से फौरी तौर पे उन्होंने कमिश्नर मुल्तान और DC को इन जो प्राइवेट कश्तियां हैं उनको अदायगी का हुक्म दिया है। और इसके अलावा जो सैलाब मुतासरीन को लूटने वाले कश्ती मालिकान हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई का हिदायत का हुक्म दिया है और कहा है कि जो तमाम निजी कश्तियां हैं उनको भी सरकारी निगरानी में चलाया जाए। और ABN न्यूज की इस खबर के ऊपर मरियम नवाज शरीफ साहबा का कहना था कि सैलाब की आड़ में मौके का फायदा उठाने और अवाम का इस्तेहसाल करने की इजाजत हरगिज नहीं देंगे। ये बिल्कुल देर आए दुरुस्त आए उनका नोटिस है क्योंकि बहुत ज्यादा इस वक्त मसाइल ऑलरेडी यहाँ पे हैं। पानी से लेकर बहुत सारे लोग अभी रेस्क्यू होने वाले बाकी हैं, खाने पीने को लेके, और वही सैलाब मुतासरीन जिनका सब कुछ ऑलरेडी पानी में बह गया है या जिनका जानी नुकसान हुआ है, माली नुकसान हुआ है, उनको इस तरीके से अब्यूज किया जा रहा था। तो हुकूमत फिलहाल उन अदायगी जो बाकी फलाही इदारों से हट के या गवर्नमेंट से हट के प्राइवेट कश्तियां उनकी अदायगी भी गवर्नमेंट करेगी और CM ऑफिस ने इस बारे में बाज़ाब्ता एलामिया भी जारी कर दिया है। वज़ीर आला पंजाब ने इस मामले का नोटिस लिया है। ABN न्यूज़ ने इस हवाले से खबर नशर की थी। ब्यूरो चीफ लाहौर उमर दराज गोंदल तफसीलन बता रहे थे। कराची में बारिश ने हर तरफ तबाही मचा दी। 22 गोटों का पपरी का कदीमी कब्रिस्तान पानी में डूब गया, कब्रें मस्मार होने लगी। मजीद इससे मुतल्लिक भी आपको तफसीलात भी जानेंगे तो हम अपने नाज़रीन को बताएं कि ये सूरत हाल कराची में पेश आई। मजीद जानेंगे नबील मीरजाज से। जी नबील, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर कायद में बारिश ने हर तरफ तबाही मचा दी है। मैं एक साथ मौजूद हूँ जिला मलीर के कदीमी कब्रिस्तान पिपरी, जहाँ पर 22 गोठों का ये कब्रिस्तान जो है वो पानी के ज़ेर आब आ चुके हैं, कब्रें मस्मार हो चुकी हैं, पर इंतजामिया गायब है। इस वक्त भी कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला भी जारी है। शहरियों ने मुतालबा किया है इंतजामिया से कि जल्द से जल्द कब्रिस्तानों से पानी की निकासी आप की जाए। इस वक्त हमारे साथ शहरी मौजूद है, आइए इनसे बातचीत करते हैं कि उनका मजीद क्या कहना है। इतनी खतरनाक बारिश हुई कराची में, हमारी इंतजामिया बिल्कुल गुम है। आप ये कदीमी कब्रिस्तान देख रहे हैं, जो दावा तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं मुख्तलिफ चैनल पे, मगर कब्रिस्तान का पानी अभी तक निकाल नहीं सके। हम गुजारिश करते हैं इंतजामिया से कि बराए मेहरबानी पिपरी का कदीमी कब्रिस्तान से पानी निकाला जाए। शहरियों ने मुतालबा किया इंतजामिया से कि पिपरी कब्रिस्तान से पानी की निकासी आपको जल्द से जल्द बेहतर किया जाए। जी, अपोजिशन लीडर सिंध अली खुर्शीदी का कहना है 15 साल पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत ने कराची को तबाही के सिवा कुछ नहीं दिया।
शराब भुट्टो का तबाह हाल होना पीपल्स पार्टी की बैड गवर्नेंस और सिंध हुकूमत की नाकामी का वाज़ेह सबूत है। जिस सड़क को पीपल्स पार्टी ने अपने कायद से मंसूब किया आज वही बदतरीन हालत में है। शराब भुट्टो का बहचाना पीपल्स पार्टी की बैड गवर्नेंस की आला मिसाल है। जिस शहर को रोशनियों का शहर कहा जाता था आज वो खंडर में तब्दील हो चुका है। अवाम बुनियादी सहूलतों से महरूम, सड़कें टूटी फूटी, हर गली में पानी खड़ा है। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने शाहराह भुट्टो के डूब जाने की खबरों की सख्ती से तरदीद कर दी। सादिया जावेद ने कहा शाहराह भुट्टो मुकम्मल तौर पर फाल है और ट्रैफिक रवां दवां है। बास बनने वाले हिस्सों में मामूली ऊंच नीच मौजूद है जिसे जल्द दुरुस्त कर दिया जाएगा। शाहराह भुट्टो पूरी तरह से फंक्शनल है। सोशल मीडिया पर जो बातें और वीडियोस फैलाई जा रही है कि शाहराह भुट्टो कहते हैं, मैं अवाम नास के लिए ये बताने के लिए ये कही हूँ कि शाहराह भुट्टो मुकम्मल तौर पर बहाल है। ट्रैफिक की आमदोरफ्त दोनों तरफ जारी है, तो सोशल मीडिया की बातों पर कान ना दें। दूसरी बात ये कि जो अगर कहीं शाहराह भुट्टो पर कोई खराबी आई है, जब नए रास्ते बनते हैं, चाहे वो M9 जब सुपर हाईवे की शक्ल में बना था या मुस्लिम हाईवे, उसमें कोई ना कोई कूड़ा आता और उसके बाद उनको रोक दिया गया। ABN न्यूज़ सैलाबी पानी में मैसूर अफराद तक पहुंच गया। जलालपुर पीरवाला की चारों तरफ से पानी डूबी बस्तियां आरा में अब भी दर्जनों अफराद फंसे हुए हैं। मवेशी भी भूखे हैं। फलाही तंजीम ने सैलाब मुतासर अफराद में खाना तकसीम किया। बस्ती इराक की ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है, मजीद जानते हैं अपने ब्यूरो चीफ लाहौर उमर दराज गोंदल से। जी उमर, मजीद कहिएगा। मैं अब जलालपुर पीरवाला से उस शहरी इलाके से आगे जो वो इलाके जिसको आप यूँ कहें जो सैलाब में डूबे हुए हैं। सैलाब कैसा है या कितनी उसकी कैफियत है, अंदाज़ा इस दरख्त से या इस पानी से लगा लीजिएगा। आपको हर तरफ पानी ही पानी नज़र आ रहा है। महसूस यूँ हो रहा है मैं जैसे कराची के साहिल के ऊपर हूँ, लेकिन ये कराची का साहिल नहीं है। बदकिस्मती से ये हमारा पंजाब का इलाका है जहाँ पे हर तरफ पानी ही पानी आपको तहद्दे निगाह पानी दिखाई दे रहा है। दावों को, हुकूमत के, बाकी सबको छोड़ के कि लोग अभी भी महसूर हैं, यानी इस कश्ती के ज़रिए हम इन लोगों तक पहुँचे हैं जिसमें बुज़ुर्ग नज़र आ रहे हैं, ख़वातीन हैं, बच्चे हैं और हत्ता के उनके जानवर जो हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं। खाना उनको तकसीम किया जा रहा है और ये अफराद जो है वो आगे आए हैं। ज़रा उस तरफ देखेंगे तो ये सारे घर, वो दरवाजे और उस तरफ वाली इमारतें जो हैं वो पानी में डूबी हुई हैं। ये नुकसान की असल कैफियत है जिससे आपको अंदाज़ा होता है कि हुकूमत के दावे, बाकी सब के दावे अपनी जगह के ऊपर हैं, लेकिन उनके जानवर यहाँ पे हैं, वो लोग तक है और वो मान रहे हैं हम तक कोई यहाँ तक पहुँचा नहीं है।